Hi guys, welcome back to English classes. English Adda. Now name had changed of my YouTube channel. English Adda. So just I want to teach you today about preposition. Now preposition part third, part 3. So now already I have told you many times that if you want to speak English, if you want to improve your English for competitive examination, and the purpose of give the great examination just like SSC, Bank, SI, and also in the way of ND examination. So preposition use is very systematically. If you want to do that, so now I'm going to teach you preposition. Just I want to some introduction. Also, I want to give some introduction. So that introduction use for you for the speaking English also and speaking, writing some essay, drama, novel, and also in last video already I have taught you some point that. So listen, my guys, listen, my friends. If you want to prepare yourself, so it is very important character preposition, and I am teaching from last video, and already I have completed 2 videos, and just see this and please subscribe my channel and share and just say with your friends, your colleagues to see the video and do better performance in your examination and your future program. So if you want to prepare yourself, so it is fact that just read part of speech, and preposition is the such type of part of speech that is used to make sentences, how to join sentences to one sentence to another sentence and one noun to another noun. It shows the relation. So already I have introduced in last video. So now I'm going to teach you some important preposition in this video, and please share and subscribe this my channel please, and because it gives me energy. Just after getting a lot of YouTubers already have you have seen, but it is my we can say profession, and my we can say it's my habit to make such type of videos. I don't want to make for the earning money, but I want to get popularity. I want to get some we can say popularity in the field of education. So it is the best way, the best performance. English Adda is the for you, and it is best channel for you if you want to study English properly. So just click and see, and we can say name just right there in your YouTube channel, promotes your English classes, and you find out that all the factors matters, especially first class CBSE class 12th and 10th and 9th 11th matters will get. Now from some days this time teaching here only preposition, and because grammar is the most important factor for the English speaking English language people. If you want to speak English, if you want to write, so you need for grammar portion. If you don't know about grammar, so how can you write, how can you speak, how can you express yourself in good manner, in correct manner, and you cannot you can say impress others. If you want to impress others, so you need for the preposition and English language. So that's it's for you, and listen better and listen carefully and see the preposition. Just I have written in on the board, so just I am going to teach you. Okay, thank you. Just see on the board. Use of on. On means पर स्थिरता और गतिशीलता के लिए यूज किया जाता है. इज ऑन इज फॉर स्थिरता और गतिशीलता के लिए प्रयोग किया जाता है. एंड सेम वे difference between, already I have told you that I am going to tell difference between on and on to means गतिशीलता के लिए, on to means गतिशीलता के लिए प्रयोग किया जाता है. Now just see the example. He will come on Monday. He lifted her onto the table means उसको टेबल पर उठा के रख दिया. वो उसको टेबल उस मीन्स लड़की को या किसी को टेबल पर उठा के रख दिया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
I think it will be clear. Next, I want to see repeat this, revise this again. यूज ऑफ ऑन पर स्थिरता और गतिशीलता के लिए किया जाता है। ऑन टू गतिशीलता के लिए मीन्स ऑन का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है, स्थिरता और गतिशीलता दोनों के लिए किया जाता है। और ऑन टू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ गतिशीलता के लिए किया जाता है बेटा। जैसे ही विल कम ऑन मंडे, मंडे पर आएगा, मंडे को आएगा, आप सेंस लगा सकते हो हिंदी का अर्थ से। ही लिफ्टेड हर ऑन टू द टेबल, हाँ वह उसे टेबल पे उठा के रख दिया, लिफ्टेड मीन्स उठाया। नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू टेस्ट ड्यूरिंग एंड फॉर एंड ड्यूरिंग, डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड ड्यूरिंग, कैसे क्या डिफरेंस होता है फॉर और ड्यूरिंग में, ये प्रीपोजिशन आपको बताता है। जैसे सामान्यतः अवधि, फॉर में लिए क्या होता है, के लिए, फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए, लास्ट वीडियो में बताया था। अब डिफरेंस पे चर्चा हम करते हैं। फॉर मीन्स के लिए या सामान्यतः अवधि के लिए किया जाता है, हाँ किसी अवधि के दौरान। और नेक्स्ट क्या है, दौरान, क्या है, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, ड्यूरिंग। जैसे ही हैज़ बीन इल फॉर 3 days, ही हैज़ बीन इल फॉर 3 days, वह 3 सामान्यतः 3 दिन से, 3 दिनों से जो है वह बीमार रह चुका है। नेक्स्ट, इट रेन्ड ऑल संडे, सारे संडे को बरसात हुई, बट स्टॉप ड्यूरिंग द नाइट, सारे संडे को बरसात होती है लेकिन रात में रुक जाती है, रात में रुक जाती है। नाउ नेक्स्ट, बिलो, बिलो, डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अंडर, बोथ मीनिंग गिव्स अस नीचे, दोनों की मीनिंग क्या होती है, नीचे के अर्थ में होता है। बिलो का भी होता है, अंडर का भी होता है। जैसे अंडर इज यूज फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट, अंडर का प्रयोग किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी के अंदर मीन्स हैं, हम किसी के अंदर हैं, किसी के अंदर दबे हैं, किसी से दबे हुए हैं, तो अंडर का प्रयोग करते हैं हम लोग वहाँ। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही पुट द बुक अंडर द पिलो, he puts the book under the table, means under the table मीन टेबल के अंदर वो बुक अपने किताबों को रख दिया है, फिजिकल कॉन्टैक्ट है यहाँ। नेक्स्ट क्या है, अंडर इज नॉट यूज फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट, मीन्स बिलो, बिलो इज नॉट यूज फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट, BELO, बिलो इज नॉट यूज्ड फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिलो का प्रयोग फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए नहीं होता है। जैसे ही प्लेस द लैम्प बिलो द अलमीरा, मीन्स अलमीरा के नीचे, इसकी किसी के अंदर में नहीं, अलमीरा के नीचे, हाँ अंडर द ट्री, हाँ अंडर बिलो द ट्री। सो इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा आप फिर समझ लें, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा। बिलो और अंडर दोनों का अर्थ होता है नीचे होता है, लेकिन अंडर का जो प्रयोग होता है, अंडर इज यूज फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट, यह भौतिक संबंध जो रिलेशन होता है। जैसे अंडर किसी बुक के अंदर, मेज के अंदर, हाँ जो उसके हाँ अंदर का प्रयोग करते हैं। बिलो कहाँ का, बिलो इज नॉट यूज फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिलो का प्रयोग फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए नहीं होता है। जैसे ही प्लेस्ड सम लैम्प, ही प्लेस्ड द लैम्प बिलो द अलमीरा, बिलो द अलमीरा। तो इस तरह से हम यूज कर लेते हैं, ही पुट्स द बुक अंडर द पिलो, तो वहाँ हम क्या करते हैं, उसको हम किसी के अंदर, अलमीरा के अंदर, तो इसका सेंस यही है कि हम बिलो और अंडर का प्रयोग नीचे के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, नीचे के लिए करते हैं। तो जस्ट सी नेक्स्ट प्रीपोजिशन, अगो, अगो मीन्स अगो एंड बिफोर, अगो एंड बिफोर। Just see next preposition, ago and before, both preposition give same meaning, दोनों जो preposition हैं एक ही meaning देते हैं, एक ही ऐसा meaning देते हैं। जैसे ago means पहले and before means भी पहले होता है। तो ago जो है ये past tense के लिए किया है, जैसे it is used in past tense, या past tense के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो before है it is used for events and work, किसी घटना हाँ के लिए या किसी वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यूज में हम लोग देखते हैं, ही केम 3 days अगो,
ही केम, वह आया 3 दिन पहले, ठीक है। जैसे बिफोर का है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, बिफोर ही रीच द स्टेशन, ट्रेन चली गई मेरे, वो उसे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गई, चली गई। तो हमारा क्या हो गया, बिफोर हो गया। अब हम बात करें बिसाइड एंड बिसाइड्स की, बिसाइड एंड बिसाइड्स की। बिसाइड मीन्स बगल में, बिसाइड मीन्स क्या होता है, बगल में। जैसे ही वॉज सिटिंग बिसाइड, ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला, ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला, सरला के बगल में बैठा हुआ था। एंड बिसाइड्स के अतिरिक्त या के अलावा, ठीक है। जैसे बिसाइड्स, जैसे ही रेड रामायण बिसाइड्स नॉवेल, मीन्स उसने नॉवेल के स्थान पर, नॉवेल के अतिरिक्त जो है, के अतिरिक्त के अलावा उसने रामायण भी पढ़ी। तो बिसाइड्स मीन्स के अलावा या क्या, के अतिरिक्त की होता है, एक्स्ट्रा के लिए, के बावजूद जिसे बोलते हैं, के बावजूद एक्सेप्ट, हाँ, का हम प्रयोग करते हैं। हाँ, इस तरह से हमारा ये बिसाइड प्रीपोजिशन हो गया, ये अगो और बिफोर का हो गया, बिसाइड एंड बिसाइड्स का हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं बच्चों। बिटवीन के प्रयोग हम चलते हैं। बिटवीन और अमंग का प्रयोग। बिटवीन मीन्स दो के बीच, दो के बीच। वास्तव में दोनों का प्रयोग दो से अधिक के बीच के लिए ही होता है, लेकिन हम शाब्दिक अर्थ बताते हैं जो अभी हम मॉडर्न इंग्लिश मीन्स एंशिएंट ग्रामर में पढ़े हुए हैं। दैट्स द रूल्स, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टीच। बिटवीन मीन्स दो के बीच में, और एमंग मीन्स दो से अधिक के बीच में। हाँ, दो से अधिक के बीच में हम एमंग का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक के लिए। और बिटवीन मीन्स दो के बीच में हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स। हाँ, बिटवीन हिज टू सन्स मीन्स वो अपनी जो है जितनी प्रॉपर्टी थी दो बच्चों के बीच बांट देता है, वो बांट दिया, ठीक है। अब वही एमंग का देखते हैं। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी एमंग द पुअर, एमंग द पुअर, गरीबों के बीच में। तो गरीबों के बहुत सारे प्रॉपर्टी पुअर हैं। पुअर एक क्या है, करेक्टिव नाउन है। क्या है, करेक्टिव नाउन है पुअर, जिसे कहते हैं, कह सकते हैं हम कॉमन नाउन है। तो पुअर को, पुअर कलेक्टिव समूहवाची संज्ञा होती है। हाँ, क्राउड है, पीपुल है, पुअर है, पीपुल्स नहीं कह सकते हम। तो इसे हम जो है हाँ यूज कर देते हैं, हाँ यूज किए हैं, तो इसलिए हम यहाँ एमंग का प्रयोग किए हैं। क्या किए हैं, एमंग का प्रयोग किए हैं दो से अधिक के लिए। हाँ, आई थिंक समझ में आ गया। फिर से हम आपको समझा देते हैं। बिटवीन मीन्स दो के बीच में, एमंग मीन्स दो से अधिक के बीच में। जैसे बिटवीन का हम प्रयोग देखते हैं यहाँ। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, वह जो है अपनी प्रॉपर्टी दो बच्चों के बीच बांट देता है। और ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी एमंग द पुअर, वह गरीबों के बीच में अपनी प्रॉपर्टी बांट देता है। तो गरीब बहुत सारे होते हैं। अब आता है मेक ऑफ और मेक फ्रॉम। ये बहुत ही अच्छा यूज है, इसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस पर। मेक ऑफ और मेक फ्रॉम बोथ आर यूज फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, दोनों मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, पदार्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दोनों का प्रयोग पदार्थ के लिए होता है। मेक ऑफ का प्रयोग होता है, जैसे एग्जाम्पल मेक फ्रॉम अवस्था परिवर्तन, और मेक ऑफ अवस्था परिवर्तन नहीं होता। मीन्स अगर मेक फ्रॉम का प्रयोग करेंगे तो उसमें अवस्था परिवर्तन होता है। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के बाद वह पुनः अपनी अवस्था में वापस न आ सके, इसलिए वहाँ मेक फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मेक फ्रॉम का। एक अवस्था में, हाँ, जैसे चेयर्स आर मेड, हाँ, बाई वुड, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाने के बाद पुनः अपनी अवस्था में वापस न आ सके, वहाँ हम मेक फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मेक ऑफ प्रयोग कहाँ करते हैं, अवस्था परिवर्तन नहीं होता। जैसे हाउस, अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, मेड ऑफ ब्रिक्स, इसमें कोई अवस्था नहीं परिवर्तन होती है। उसे हम पुनः फिर मिट्टी में मिला सकते हैं, चूर करके, तोड़ करके, फोड़ कर मिट्टी मिला सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या हम बटर को फिर दूध में मिला सकते हैं, कभी नहीं मिला सकते हैं। तो उसी तरह से हम मेक ऑफ मेक फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मेक ऑफ अवस्था परिवर्तन जो है नहीं होता है, और मेक फ्रॉम से अवस्था परिवर्तन होता है। हाँ, जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क,
butter is made from milk, हाँ, और house is made of bricks। तो ये हमारा हो गया। बच्चों मुझे मालूम है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है देखने में, देखकर लिखने में, आप इसे लिख सकते हैं। और ये थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, मार्कर की प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ। सो अभी आप प्रयास करें, फिर नया मार्कर अभी ख़त्म हुआ है, मैं आपके साथ फिर आऊँगा बीच में, हाँ, फिर पढ़ाऊँगा। सो आप जस्ट follow with me and live with me and study with me with as a company, as a class, as a family. Just I want to give most important points, supporting things, and don't mind, I am with you. If you have any problem, if you have any query, so you can ask in my comment box, and you can send messages, and also you can find some queries from the books and find out some questions. And I request you, please ask questions, don't see as a dumb and deaf। ऐसे नहीं देखना है, आप क्वेश्चन पूछो, हम आंसर देंगे। आई एम ऑलवेज विद यू, हाँ, यू पीपल, बिकॉज नाउ दिस टाइम इज स्कूल इज गोइंग टू ओपन, बट नाउ नॉट गोइंग टू ओपन, हाँ। गवर्नमेंट अनाउंस दैट school is going to open, but in some cases, in some problems, the district magistrate, DM of the district, and DM and also SDM of the district, they don't want to give permission for the open school. But you don't need for the schools, it is such type of facility for you, YouTube channels and social networking sites, and also online classes. Study that and give find and take good materials and systematic materials for your future program, for future education. So now just I want to request once again, please subscribe my channel, share, and we can say view and write, make a note copy, notebook, and write the sentences, and try to give some we can say comments, and try to give good things, and try to do better performance in your life. So just I want to give some more videos step by step, day by day, after day. So please subscribe my channel, and best of luck. Thank you.